جی مولانا حسین بہت اچھا کلام پیش کر رہی تھی ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں۔ بہت ساری فکر انگیز نظموں کے خالق اور ہمارے قلم قبیلہ کے سربراہ بنے، جن انجمن تقدیس ادب کے پریزیڈنٹ ممتاز شاعر عزت مآب جناب باسط جلیل صاحب۔ شکریہ آپ، ممنون میں آپ کا، آپ نے بڑا خوبصورت تعارف کرایا میرا۔ صدر محترم تو ہیں نہیں جو اجازت دوں سے لہذا خود ہی صدارتی اختیار استعمال کرتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو چیف مارشل سر آپ کا انتظار اور آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، تو اجازت ہے؟ ایک چھوٹی نظم ہے۔ جی جی، عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے کہ ادھوری زندگی، ادھوری زندگی، لیکن ہلکی سی ہے نظم کہ زندگی خوشگوار ہے پھر بھی، زندگی خوشگوار، زندگی خوشگوار ہے پھر بھی خیال ایسا بھی آتا ہے بنا ایک حرف بھی ہونٹوں پہ لائے، کوئی آواز نہ حرکت نہ اشارہ کوئی، بنا ایک حرف بھی ہونٹوں پہ لائے، کوئی آواز نہ حرکت نہ اشارہ کوئی، بنا پلکوں کو جھپکے میرے دل کی تمنا تیرے دل میں اتر جائے، بنا ایک حرف بھی ہونٹوں پہ لائے، کوئی آواز نہ حرکت نہ اشارہ کوئی، بنا پلکوں کو جھپکے میرے دل کی تمنا تیرے دل میں اتر جائے، تو میرا مدعا سمجھے اور پھر چپکے سے میرے پاس آ کر نرم ہاتھوں کی پوروں سے میرے ہاتھوں کو چھو کر کہے جو تو نہیں تو زندگی ادھوری ہے۔ کیا کریں، یہ چھوٹی سی نظم تھی۔ ایک ہے نظم نہیں نہیں، وہ میں سیکھ چکا ہوں، میں نے بہت سنا، ہاں وہ سیکھ لیا، ابھی جا رہے ہیں 28 کو سیکھنے۔ جی ہاں 28 کو ہم لوگ پانی پہ چلنے کے لیے ہم کروز پہ جا رہے ہیں، تو ایک گروپ جا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں جی چلیں۔ اچھا، نظم کا عنوان ہے اوج انسان۔ نہ صحن مسجد مجھے میسر، نہ صحن مسجد مجھے میسر، نہ تھا مصلی بھی دسترس میں، نہ ہاتھ میں میرے تسبیح دانے، نہ در کھلا تھا کسی ولی کا، نہ کوئی مندر نہ گردوارا، نہ چرچ تھا آس پاس کوئی، نہ کوئی حاصل مجھے وسیلہ، نہ کوئی میسر مجھے سفارش، تلاش رب میں مٹا کے اپنی ذات کو میں دوزانوں بیٹھا تھا خاک پہ میں، نہ ساتھ کوئی نہ پاس کوئی، مدد کسی کی نہ آس کوئی، میں رفت ربی کا منتظر تھا، میں دل کی دھڑکن کو سن رہا تھا، دل کی دھڑکن کو سن رہا، مدد کسی کی نہ آس کوئی، میں رفت ربی کا منتظر تھا، میں دل کی دھڑکن کو سن رہا تھا، فقط دل کی دھڑکنیں ہی رابطے کا ذریعہ بنی تھی، میں صد یقین تھا در توبہ کھلا ہوا ہے، وہ خالق کل وہ مالک کل جو میرا پروردگار بھی ہے، جو نیتوں کو جانتا ہے، جو رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، وہ میری توبہ کا منتظر تھا، میں بارگاہ رب میں اپنے لیے ندامت میں رو رہا گڑ گڑا رہا تھا، میں عرق اسیاں لٹا رہا تھا، میں بارگاہ رب میں اپنے لیے ندامت میں رو رہا گڑ گڑا رہا تھا، میں عرق اسیاں لٹا رہا تھا، وہ ایک لمحہ بس ایک لمحہ کہ جیسے سب کچھ ٹھہر گیا ہو اچانک آنکھوں سے میرے موتی، وہ ایک لمحہ بس ایک لمحہ کہ جیسے سب کچھ ٹھہر گیا ہو اچانک آنکھوں سے میرے موتی، وہ نادم آنکھوں میں کب سے ٹھہرے چھلک پڑے تھے، یہ آنسو اسیاں کے غم سے بھاری، یہ آنسو ریاکاریوں سے آری، وہ اس سے پہلے کہ خاک ہوتے انہیں فرشتوں نے چل لیا، یہ آنسو اسیاں کے غم سے بھاری، یہ آنسو ریاکاریوں سے آری، وہ اس سے پہلے کہ خاک ہوتے انہیں فرشتوں نے چن لیا تھا، وہ چشم اسیاں کے دو ہی قطرے، وہ دو ہی آبدار موتی،
मगर अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का शरफ समेटे खुदा को मकबूल हो गए थे। वाश मेरी नदामतों के वो सच्चे मोती सदाकतों के फलक पर है अब मेरी अमानत। बहुत खूबसूरत वाश मेरी नदामतों के वो सच्चे मोती सदाकतों के फलक पर है अब मेरी अमानत। और सुना है एक फरिश्ते को कहते वो और इंसान की है जमानत। बहुत अच्छा क्या अगर इजाजत हो तो गजल। जी जी बिल्कुल। अब गजल। ये अच्छा जुमला लगा मुझे। अपना घर है। अपना घर खाना हम खा चुके हैं, जो मर्जी का घर है। और क्या चंद अशारे गजल के हर एक राह में वाह राहत थी मुंतजिर मेरी, वाह हर एक राह में राहत थी मुंतजिर मेरी, खजीने देख ना पाई थी ये नजर मेरी। वाह हर एक राह में राहत थी मुंतजिर मेरी, खजीने देख ना पाई थी ये नजर मेरी। वो शख्स और ही रस्ते का एक मुसाफिर था, वाह वो शख्स और ही रस्ते का एक मुसाफिर था। सो मुख्तलिफ ही रही उससे भी डगर मेरी, सो मुख्तलिफ ही रही उससे भी डगर मेरी। कभी वो शहर से लौटा तो मेरे पास आया, कभी वो शहर से लौटा तो मेरे पास आया। ये कौन देता था उसको भला खबर मेरी। और नजर न आने की जिसने कसम उठाई है उसी को ढूंढ रही है अभी नजर मेरी। नजर न आने की जिसने कसम उठाई है उसी को ढूंढ रही है अभी नजर मेरी। और सहर तलक जो मुझे रोशनी दिखाती रही, सहर तलक जो मुझे रोशनी दिखाती रही। ये किसकी जात थी कल रात हम सफर मेरी। सहर तलक जो मुझे रोशनी दिखाती रही, ये किसकी जात थी कल रात हम सफर मेरी। और सिले का शौक है मुझको न एहतिसाब का डर, सिले का शौक है मुझको न एहतिसाब का डर। कि सच का रास्ता बासित है अब डगर मेरी। बहुत बहुत जोरे कलम और ज्यादा बहुत अच्छा लिखा बासित भाई, जिंदाबाद। बासित भाई बहुत फिक्र में बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे माशाल्लाह। और नज़्म की तरह इनकी गज़ल भी जो है वो माशाल्लाह लाजवाब। और अब महफिल अपने उरूज पर है, तो इस मौके पर अब मैं जिस शख्सियत को दावत देना चाहता हूँ उनके मेरे लिए तो कई हवाले हैं। और मैं ये कहने में आर महसूस नहीं करता कि ज़िंदगी में अगर मैंने किसी शख्स के सामने अपना कलाम इस्लाह के लिए पेश किया तो वो जनाब याद मुफ्ती थे। याद मुफ्ती एक हवाला उनका नाग का है जो कि सबसे मोतबर हवाला है। और वो नाग लिखते हैं, पढ़ते हैं और दुनिया में हसाने ह्यूस्टन कहती है। और अंजुमन तकरीर अदब के बानी हैं और अपनी ज़ात में वो खुद अंजुमन हैं। मैं उनके मतलब बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन एक फिक्रा जो उनके बारे में मैंने लिखा था कहीं वो ये कि आज के दौर में जब के लोग अखबारात की सुर्खियों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, याद मुफ्ती जो काम तहकीकी काम कर रहे हैं, जो अपनी खिदमत कर रहे हैं, ये अपना नाम तारीख में लिखवा रहे हैं। और शायरी तख्लीक करते हैं, तो ये हर वक्त शायर तख्लीक करते हैं, तशरीफ लाते हैं अपना कलाम पेश करने के लिए। इज्जत माँ बरादरम याद मुफ्ती तीसरे इज्जत माँ बाग है। जी जी अभी तो चौथे बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं माशाल्लाह जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज निज़ामत का ये जो तजुर्बा है बहुत खूबसूरत रहा। और मैं समझता हूँ हम जो शायर दरियाफ्त करते थे, आज हमने एक नया नाज़िर भी डाला। ग्रामी एक आधे कथा सुनाऊंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह चलारी भाई। रोशनी जैसे वफादार हो बांधी उसकी, रोशनी जैसे वफादार हो बांधी उसकी, वो जहां जाए तो एक नूर का हाला जाए, वो जहां जाए तो एक नूर का हाला जाए।
मैं भले जो भी पढ़ूं, जैसा पढ़ूं, जितना पढ़ूं, क्या कहें? मुझको गिनती की इबादत में न डाला जाए। और शेर सुनिएगा कि मैंने माना कि खता आदम व हव्वा से हुई, उन खताओं को मेरे जिम्मे न डाला जाए, उन खताओं को मेरे जिम्मे न डाला जाए। और शेर है वासिफ भाई के कितने ही लोग चले जाएंगे जहाँ से अपनी तेवरे हुस्न किसी तौर संभाला जाए, तेवरे हुस्न किसी तौर संभाला जाए। हज़रत ग्रामी एक छोटी सी आज़ाद नज़्म दौर चला है, मैं भले जो भी पढ़ूं, जैसा पढ़ूं, जितना पढ़ूं, मुझको गिनती की इबादत में न डाला जाए। और एक बड़ी दिलखराश किस्म की हकीकत है, और मैंने जिस दिन ये खबर पढ़ी थी मैं लिटरली बड़ी देर तक रोता रहा। उसी हालत में ये नज़्म हुई और वही आपकी नज़र करता हूँ। इसका उन्वान मैंने रखा है अल्ताफ़ भाई, रक़्स-ए इब्लीस। नज़्म है कि किस कदर अवाम दोस्त हुकूमत यहूद है, किस कदर अवाम दोस्त हुकूमत यहूद है, जंग हो या अमन हो सहूलतें ही देती है, जंग हो या अमन हो सहूलतें ही देती है। इस दफ़ा भी वोटर्स के एक अजीम मजमा को एक हिमालयाई सी बड़ी स्क्रीन लगवा कर लाइव व्यू दिखाने का एहतमाम कर डाला। ड्रोन बम गिराता हो या कि घर जलाता हो, अस्पताल ढह जाए या स्कूल जल जाए, जहाज जंगी जाता है, गजा में बम गिराता है। जब कोई फ़लस्तीनी अपनी जान से जाता है, इसराइली मजमा ये तालियां बजाता है। जो ही इसराइली टैंक आग को उगलते हैं और दूसरी जानिब सिसकियों और आहों में मरते बच्चे देखकर और जलती लाशें देखकर अश्क को हिलाती चीखें उन्हें सुनाई देती हैं। यहाँ पे बैठे लोगों के चेहरे तमतमाते हैं। अव्वलन फलक शिगाफ नारा एक लगाते हैं और फिर ये मर्दोज़न तालियां बजाते हैं। सब इदारे दुनिया के तालियों में शामिल हैं और ये फ़लस्तीनी उनकी सब मुग़ल्लिज़ात और तमाम अबलागी गालियों में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया। हज़रत ग्रामी एक गज़ल पेश करता हूँ तहत पे। मेरे वालिद ने असल में इस ज़मीन में लिखा था, तो मैंने भी, मुझे भी तहरीक हुई, उसी का लिखा मैंने। शौक जब भी बंदगी का रहनुमा होता नहीं, शौक जब भी बंदगी का रहनुमा होता नहीं, जिंदगी से जिंदगी का हक अदा होता नहीं। शौक जब भी बंदगी का रहनुमा होता नहीं, जिंदगी से जिंदगी का हक अदा होता नहीं। क्या समझ आएंगी तुमको इश्क की बारीकियां, क्या समझ आएंगी तुमको इश्क की बारीकियां, दिल तुम्हारा जब तलक दरदाशना होता नहीं, दिल तुम्हारा जब तलक दरदाशना होता नहीं। और ये तख़य्युल देखिएगा अल्ताफ़ भाई के जिस्मो रूह का इश्क ये कायम रहेगा दायमी, जिस्म रूह का इश्क ये कायम रहेगा दायमी। खत्म बादे मर्ग भी ये सिलसिला होता नहीं, खत्म बादे मर्ग भी ये सिलसिला होता नहीं। और मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है वासिफ भाई के, कौन है जो जुर्म करने को है शब का मुंतज़िर, कौन है जो जुर्म करने को है शब का मुंतज़िर, रोशनी में दिन की यारो क्या भला होता नहीं। कौन है जो जुर्म करने को है शब का मुंतज़िर, रोशनी में दिन की यारो क्या भला होता नहीं। और गालिबन होता मुझे भी घर के गिरने का गिला, गालिबन होता मुझे भी घर के गिरने का गिला, राहगीरों का अगर ये रास्ता होता नहीं, राहगीरों का अगर ये रास्ता होता नहीं। और शेर है सलमान भाई के,
बदगुमानी की फिजा में क्या सफाई दे तुम्हें, बदगुमानी की फिजा में क्या सफाई दे तुम्हें, इस फिजा में कोई भी हल मसला होता नहीं, बहुत अच्छा। इस फिजा में कोई भी हल मसला होता नहीं। और तवज्जो चाहूंगा ज़फर भाई शेर पे आपकी, कोई गुस्ताखी तो की है नाव ने गिरदाब से, वाह, कोई गुस्ताखी तो की है नाव ने गिरदाब से, वरना यूं साहिल पे कोई गमज़दा होता नहीं, वरना यूं साहिल पे कोई गमज़दा होता नहीं। और शेर सुनिएगा कि कमराए तकदीर में आती उरूसे आरज़ू, कमराए तकदीर में आती उरूसे आरज़ू, वक्ते नाहंजार का जो फैसला होता है, वक्त नाहंजार का जो फैसला होता नहीं। और मक्ता अव्वल है कि मुफ्ती देखो मेहर पलटा है मेरी तकदीर का, मुफ्ती देखो मेहर पलटा है मेरी तकदीर का, देखते हैं किस तरह सजदा अदा होता नहीं, देखते हैं किस तरह सजदा अदा होता नहीं। और शेर सुनिएगा कि आंख से पीने का भी साकी ने मांगा है हिसाब, आंख से पीने का भी साकी ने मांगा है हिसाब, इस रविश से मुफ्ती कोई महकदा होता नहीं, इस रविश से मुफ्ती कोई महकदा होता नहीं। और हज़रात गिरामी एक तहत में और सुनाना चाहूंगा अगर इजाजत हो। आपका दिन है जनाब। एक तरही थी गजल, उसपे तबास भाई की थी, तो सुनिएगा कि लौट कर अपने घर गया कब का, लौट कर अपने घर गया कब का, बासित भाई लौट कर अपने घर गया कब का, दिल मेरी जान मर गया कब, वाह, दिल मेरी जान मर गया